You may now be seated आइए in the हम सभी बैठ presence of जाएंगे। God. आइए हम सभी बैठ जाएंगे। Praise God. Are you excited? आप सब एक्साइटेड हैं? हालेलुया। Tell your neighbor, are you excited? एक दूसरे को बोलिए, आर यू एक्साइटेड? एक दूसरे को बोलिए कि आप खुश हैं? Okay, at your back, say it. Are you excited? आप एक दूसरे को बोलिए, आप खुश हैं इस जगह पर? आमीन। अच्छा है? अच्छा है? Aywa. सब Mia अच्छा Mia. है? मियाँ मियाँ Wa Mia Bil Mia. मियाँ बिल मियाँ Sah wala mo sah. सा Aywa. Kulo malum Arabi hina ma fi malum. मालूम कुल्लो Malum kulo malum ha? Kulo Okay. malum. Kalas kulo Arabi ka nagkalam liyom ha? ऐ वाली Aywa. ऐ Praise the Lord. हालेलुया। Once again, if I say hallelujah, what will you answer? प्रेज द लॉर्ड। Again, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। If I say praise the Lord, हालेलुया। glory to God. Amen. Give the Lord the mighty hand of praise. Amen. You are learning. आइए Amen. हम अपनी बाइबल को खोलें और सीखेंगे। Yes, you have your Bible today. आपकी बाइबल जो है वो दिखाइए। Please raise the उठाइए। Bibles if you have your Bibles, Urdu Bibles or English, जिनके पास whatever. इंग्लिश उर्दू बाइबल है दिखाइए Praise the अपनी बुक Lord. को। Come on, just slip it. आइए Just slip दिखाइए। it. Okay, we will उठाइए see अपनी it. बाइबल को। Okay, how many? 1, 2, 3. Just slip. 4, 1, 2, 5, 3, 6. 4, 5, 5, 6 Bibles. Yes, 5, Okay, 6 last Bibles. week, no Bible, right? नो बाइबल। No Bible, only Yes. 3. Now, Yes. 3 Bibles coming. यस आमीन। Praise the Lord. So Praise the next Lord. next Friday, all Bibles. आने वाले जुमा को आप ज्यादा बाइबल्स लेके आइए। Okay? आमीन Okay? Amen? आमीन। Praise the Lord. So today we will going to tackle about the topic prayer. आज हम देखेंगे जो टॉपिक है हमारा अनुमान है वो है दुआ करने का। About prayer. कैसे दुआ करनी है? What is prayer? दुआ क्या है? Amen. Any one of you knows how to pray? आप जानते हैं कि दुआ क्या है? Did you pray this morning? जब आपने इस मॉर्निंग में प्रेयर की है, किस किसने की? अपने हाथ Okay, को raise उठाइए। your hands if you prayed this आप morning. अपने हाथों को उठाइए जिन्होंने दुआ की आज Okay. मॉर्निंग। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Okay, every Christian हाँ। must pray हर एक मसीही को चाहिए कि वो दुआ करे, because prayer is very important to a believer. क्योंकि हमारी जिंदगी में दुआ जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। Christians don't pray अगर मसीही लोग दुआ नहीं करते हैं, is a sin. ये गुनाह है। Inta ma fi doa iji galat ziyada. Sa? यस Aywa. Lazim sabi doa kulyum. Ma fi Aywa. bas kulyum. Subah, dohor, olel. Lazim. Sa? सही हुआ। Aywa. तलाता मर रहा है। Talata mo bas talata mara. In yom. Aywa kintayb ka sawi sa leho. Doa. Lazim sawi kulyum. जब भी आप Aywa. चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं आप दुआ कर सकते हैं एक दिन में। Praise the Lord. हालेलुया। Praise God. So we need to pray. हमें चाहिए कि दुआ करें। Because what is prayer? Please plus. Prayer is दुआ क्या है? the daily experience of God. दुआ खुदा का रोजाना तजुर्बा है। Okay, come on, let us read everybody. आइए हम All सभी together. पढ़ेंगे। What आइए is हम this? सभी पढ़ेंगे। 1, 2, 3. दुआ खुदा का रोजाना तजर्बा है। दुआ हमारी तमाम ख्वाहिशात का खुदा के सामने एक आजिज़ाना एतमाद के साथ पेश करना है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जरिए रहम हासिल करें। आमीन। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. Everybody is cooperating. Amen? Amen. So prayer is the offering our desires. What is your desires in your heart? जो हमारी दुआ है ये खुदावंद के सामने हमारी ख्वाहिशात को रखती हैं। जो भी आपकी ख्वाहिश है आपके दिल में, शर्त ये है कि वो पाक होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी Amen. चाहिए। आमीन। If you want your good job, if you want a job, you pray to God. अगर आप सही एक बिजनेस चाहते हैं, अगर आप सही एक नौकरी चाहते हैं तो आप दुआ कीजिए खुदावंद से। Amen. आमीन। How many of you still praying for good job?
कौन कौन अपनी जॉब के लिए दुआ कर रहा है? अपने हाथ को उठाइए। Amen. God will answer your prayer. खुदावंद आपकी दुआओं का जरूर जवाब देगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Today, आज के दिन, how to pray. आज के हम We will देखेंगे कि हम दुआ कैसे कर सकते हैं। Amen. We will going to tackle about how to pray. Next slide, आज हम please. सीखने जा रहे हैं कि हम Okay. दुआ कैसे कर सकते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए। पहला टॉपिक है Can you please दुआ read? कैसे करें। आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। आप सब उर्दू जानते हैं ना? पढ़िए। रूल कुदस की ताकत के जरिया से यीशु मसीह बाप से दुआ करें, यूहन्ना 2:11 के नाम पर, जैसा खुदावंद हमें बताता है। Amen. So how to pray? Letter A there is pray to the Father in the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम के जरिया से हम खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। Amen. First सबसे is पहले going, you will address to the Father. सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि बाप कौन है और उसे याद कीजिए दुआ में। Like for example, Father, I come to you in the name of Jesus. जैसे हम कहते हैं कि ऐ बाप मैं तेरी तरफ आता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. You will going to say, Abba Father or our Father. आप कह सकते हैं, अब्बा फादर कह सकते हैं, ऐ बाप कह सकते हैं उसे। Okay, open your book or Bible in Luke chapter 11 verse 2. आइए हम खुदावन के पाकलाम में से देखेंगे। लुका Okay, then read it. Luke chapter 11 verse 2. Here. Yeah. Okay. लुका 11 का 2 हम पढ़ेंगे सभी मिलकर। If you find it, you will stand and read. Okay. जो भी जिसको भी मिले वो उठकर पढ़े। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरा Flash नाम mo sa पाक English. माना जाए, तेरी बादशाही आए। Amen. आमीन। Thank you brother for reading। Praise the Lord. In English, okay, he will और इंग्लिश plus में it. हम देखेंगे। Luke chapter 11 verse 2. Okay, we will read. Sabi niya dito, he said here, okay, let us, he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। Amen. So, आमीन। the first word you will say is, Father, in the name of Jesus, I come to you with a humble heart. सबसे पहले हमें कहना चाहिए कि ऐ बाप मैं तेरे पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में अपने पाक दिल के साथ। हालेलुया। Or you can say, Father, the creator of the heavens and the earth. और आप ये भी कह सकते हैं, ऐ बाप जिसने तूने जो सारी दुनिया बनाई है और ये सारा यूनिवर्स क्रिएट किया है, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ। Amen. The Amen. second is, in the name of Jesus Christ. और दूसरा है, पहला हम बाप कहकर दुआ कर सकते हैं, दूसरा यीशु मसीह का नाम लेकर बाप से दुआ कर Okay, सकते हैं। open your Bible in John chapter 14, verse 13 to 14. आइए यूहन्ना की किताब उसका 14 बाप उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना John 14 chapter बाप 14, verse 13 to 14. Okay, if you find it, stand and read loudly. और जिसे मिले वो उठकर पढ़ दे। 13-14 आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन। आमीन। Amen. 14 आयत को भी पढ़ दीजिए। पढ़ दिया। Praise the Lord. ओके, थैंक यू ब्रदर। Hallelujah. He said Hallelujah. here in English, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। Amen. Amen. And verse 14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. आयत नंबर 14 जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन। This is the promise of God to those who pray in the name of Jesus. ये खुदाउन का वादा है हमारे साथ कि यीशु मसीह के नाम में जो भी कोई दुआ करता है
खुदावंद बाप, हमारा आसमानी बाप, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने ये सारी दुनिया बनाई, वो दुआ सुनता है यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। He said in verse 13, and I will do whatever you ask in my name. आयत नंबर 13 में खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे Hallelujah. मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। Praise the Lord. आमीन। हालेलुया। So, this is the promise of our God. Not the name of Allah, not the name of Buddha, not the name of Hindu, not the name of Muhammad. Only in the name of Jesus. आमीन। हालेलुया। और ये सारे नाम, जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करते हैं, तो कोई और नाम नहीं है। जैसा भाई ने बोला है कि कोई और दूसरा नाम नहीं। हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम जो अल्लाह कहकर पुकारते, मोहम्मद कहकर पुकारते, कोई और नाम नहीं है। सिर्फ Hallelujah. यीशु मसीह का नाम है जो हमें निजात दे सकता है और बाप के पास लेके जा सकता है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Why? He said here, why we ask the name of Jesus so that the Son may bring glory to the Father. Why we pray in the name? So that Jesus Christ, amen, may bring glory to our Father. फादर, हम Hallelujah. इस यीशु मसीह के नाम में हम क्यों दुआ करते हैं? ताकि यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारे जिंदा आसमानी बाप को इज्जत और जलाल मिले, और उसी के नाम को सजदे वाजिब हैं। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. And the promise of God, he said there, and I will do it. और खुदावंद का वादा है कि जब तुम मुझसे चाहोगे, जब तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। Praise God. आमीन। Anything in my name. Eishein Tibgas. Alatulyati. आमीन। हालेलुया। आप समझ गए हैं अभी। Alatulyati. Eishein Amen. Tibga. जो Kalam भी आपको Jesus. चाहिए यीशु मसीह के नाम में आप मांगिए, मैं आपको अलातूल दे दूंगा। Amen. हालेलुया। Yesu al-Masih. यीशु मसीह के नाम में। Isa al-Masih. Yes. Jesus Christ. No, Yesu the al-Masih. Son of the Yes. living God. यस आमीन। Hallelujah. यीशु Praise God. मसीह Amen. जो And जिंदा next, खुदा का बेटा है और हमारा निजात दहिंदा है। next is through the power of the Holy Spirit. आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि दुआ कैसे करनी है। उसका टॉपिक नंबर 2, Why through the power of the Holy Spirit? हमें क्यों खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि आपको पाक रूह के पावर की ताकत की जरूरत है। आइए हम देखेंगे। Okay, let us open our Bible, Ephesians chapter 6, verse 18, and read it. आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे इफिसियों 6 बाब उसकी 18 आयत को। Okay? Who will read it? जो भी At the back. निकाले, Okay, I want you पढ़ to ले। read those who have Bible there. No, not your brother. Another जिनके पास one. बाइबल है वो उठकर Give पढ़े। chance. जिनके Lala पास mainta, tani nafar. Anay b'shuf, anay b'isma. दूसरा कोई ब्रदर उठ के पढ़े। जी पढ़ दीजिए। Aywa, narindar. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। Amen. आमीन। So the Lord commanded us to pray always. खुदावंद का पाकलाम हमें बताता है, यानी खुदा हमें ये हुक्म देता है कि हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए। Amen. Pray for Amen. brothers, pray for sisters. दुआ कीजिए Everyone. भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आप अपनी फैमिलीज के लिए, आप अपनी नेशंस के लिए, आप अपने चर्चिज के लिए, आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए दुआ करें। हालेलुया। Praise the Lord. Praise So the Lord. that's why I ask you if you know how to pray. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकलाम भी हमें बताता है कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं। कि पहले यीशु मसीह के नाम में बाप से दुआ करनी है, और दूसरा है कि हमने अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं बेटों बेटियों के लिए दुआ करनी है, और अपने मुमालिक के लिए दुआ करनी है, अपने बिजनेस कारोबार के लिए दुआ करनी है, अपने पड़ोसी के लिए दुआ करनी है, अपने लोगों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. So that's why
we are commanded to pray the Father in the name of Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. इसीलिए हम एक दूसरे को बताते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जब हम दुआ मांगते हैं खुदा बाप से, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता और उनका जवाब देता है और ऐसे बड़े बड़े काम करता है जो हमारी समझ से भी बाहर हैं। Hallelujah. आमीन। If you are born again Christians, how many of you are born again Christians here? Are कौन you born कौन again Christian? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है सभी Raise अपने your हाथ hand. खड़े कीजिए। हालेलुया। Are you sure you are born again? यस, Sahi? सही Sahi o hafisa? सही। Okay. Born again Christians are those who have personal experience with the Lord. जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आपका पर्सनली तजर्बा क्या है? Amen. Born again Christians. जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनका पर्सनल तजर्बा क्या है? Okay. Okay. I can hear you. John chapter 1 verse 12. Can you please आइए। open it? John chapter 1 verse 12. यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 12 आयत को देखेंगे। John chapter 1 verse 12. यूहन्ना पहला बाप उसकी 12 आयत को देखेंगे। John chapter 1 verse 12. लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। Hallelujah. See? हालेलुया। He said here, yet to all who receive him, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, to those who believe in his जो name, भी कोई, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया he gave the right to become children of उसने God. उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। Believing only in the name of Jesus Christ is not enough. आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। You have to receive it. आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। Just like a gift, when I give you a gift, you जब- should receive it. जैसे आप गिफ्ट को, जैसे अगर मैं चाहूं आपको गिफ्ट दूं और आप गिफ्ट को रिसीव करते हैं, इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम को गिफ्ट की तरह रिसीव कीजिए। आमीन। Amen. Because the gift of salvation is free. क्योंकि नजात का जो गिफ्ट है, नजात का जो तोहफा है, वो खरीदा नहीं जा सकता है और उसकी कोई कीमत भी नहीं है, लेकिन खुदावंद ने हम सबको फ्री में दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. You don't need to pay the salvation. आपको जरूरत नहीं है पैसे दे के पे करने की, यानी पैसे दे के नजात खरीदने की जरूरत नहीं है। Just receive the gifts of salvation and it's free for बस you. खुदावंद के तोहफे को कबूल कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए फ्री है। Amen. आमीन। You don't need to be a good person. आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि पहले मैं अच्छा बन जाऊं फिर ऐसा करूंगा। You don't need to have a good job. आपको ये जरूरत नहीं है कि मैं पहले बड़ा एक प्रोफेसर या बड़ा इंजीनियर या पायलट बनूंगा फिर ऐसा करूंगा। You don't need to be a professional. आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा एजुकेटेड हूंगा, पढ़ा लिखा हूंगा तो फिर ऐसा करूंगा। The only thing you do is to receive it. बस आपको इस बात की जरूरत है कि जो पाक कलाम में लिखा हुआ है उसको रिसीव करें। अगर कोई आदमी भी आपको गलत बता रहा है तो उसकी मत सुनिए। Because हालेलुया। Jesus has done and paid it on the cross. क्योंकि on यीशु Calvary. मसीह ने क्या किया है, हम सब के लिए सलीब पर सारी कीमत चुका दी है और उसने अपनी जान देकर हमें बचाया है। Amen. Praise God. Give the हालेलुया। Lord a mighty hand of praise. आइए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल दें। That is the good news. खुदावंद जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। That's why you don't need to be shy that you are Christian. इसीलिए आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है कि लोगों में जाके, दुनिया के कोने कोने में जाके बता के कि Amen. हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। Amen. हालेलुया। Mungkin finafar inta misihi, aywa ana misihi. अक- Ana Christian. काफी सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको बताने की जरूरत है। यस, यीशु मसीह के हम Amen. मानने वाले हैं और हम मसीही हैं। आमीन। Finafar kalam, misihi mafi koyes. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग ठीक नहीं हैं,
But if you have the Christ in your life, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है you have the gift of salvation. और फिर आपके पास अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो आपके पास निजात का तोहफा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let us see the verse in 1 John chapter 5 verse 13. आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना 5 उसका 13। Amen. Let us start from 11 to 13. आइए हम 11 से शुरू करके 13 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 5 Yeah, 1 John chapter 5 पहला verse यूहन्ना 11 to पहला 13. यस पहला यूहन्ना Okay, if you find it, come on, stand and read with पहला understanding. यूहन्ना 5 11 से 13 तक पढ़ेंगे। Okay. Oh, कोई और ikaw na naman. कहने दूसरे ने मौका दो। Okay, let others. I want to read the other back. That's that guy. Who's that? Aywa? This one. और ये वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। 13 भी Amen. पढ़ दीजिए। 13. मैंने तुमको तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। See? Praise the Lord. Come Praise the on. Lord। See? The देखिए। Bible said, कि खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है? no Jesus, यीशु मसीह नहीं है, no eternal life. हमेशा की जिंदगी नहीं है। Amen? हालेलुया। It's that simple. Very simple. ये सिंपल है। ये हमारे लिए बिल्कुल आसान बात है कि हम इस बात को जान सकें। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो पाक कलाम कहता है आपके और मेरे पास जिंदगी भी नहीं है। Okay, tell your brothers, no Jesus, एक दूसरे को बोले अगर यीशु नहीं है no eternal life. तो हमेशा की जिंदगी नहीं है। Kalamora, karo. एक Tell दूसरे at the को back. बैक साइड पर भी बोले दूसरे को No अगर Jesus, यीशु मसीह नहीं है no तो जिंदगी eternal नहीं life. है। Amen? आमीन। Praise God. Praise God. हालेलुया। खुदाम के Clap. नाम को इज्जत और जलाल दें। Amen. So, we need to receive the Lord Jesus Christ and believe Him. और हमें जरूरत इस बात की है कि यीशु मसीह को रिसीव करें और जो निजात का गिफ्ट हमारी जिंदगी में है उसे ले और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। Believing only the name of Jesus is not enough. यीशु मसीह पर सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है क्योंकि ये बाइबल कहती है, मैं खुद से नहीं कहता हूँ। You have to receive the gift of salvation. आपको इस बात को रिसीव करने की जरूरत है जो निजात का गिफ्ट खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है। Amen? आमीन। That's why when you pray, Father, in the name of Jesus, through the इसलिए power जब हम of the दुआ Holy करते हैं, Spirit, जब क्या खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में पाक रूह को हमारे ऊपर भेजिए ताकि क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं। हालेलुया। hallelujah. Not like this, in the name of Father, Son, of the Holy Spirit, mafikida-kida. ओ Okay. खुदावंद का पाक कलाम जब हम देखते हैं, जब सर्च करते हैं, ओ ब्रदर ने सीधा बताया, कुछ ये भी बताने की जरूरत होती है कि जब हम सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। Before I came to Jesus, before I came to know Jesus जब Christ, मैं यीशु मसीह में नहीं आया था, I was a Catholic and a choir leader of the church. और मैं क्वायर लीडर था, कैथोलिक में था। And we usually, after prayer and before praying, in the name of the Father and the Son and the Holy और Spirit, आप we सब usually do जानते that हैं कि this जब one. हम तसलीस को देखते हैं और उसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करता था। But now, because I believe, because it is not written in the Bible to make sign of the cross. क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ी और वहां पर मैंने देखा कि जब ये हम साइन करते हैं ये पाक कलाम में नहीं लिखा हुआ है। Just you finish praying, you will just answer Amen. जब हम और आप दुआ करते हैं तो पाक कलाम कहता है कि हमें आमीन कहना चाहिए और आगे बढ़ना है। Amen. आमीन। Amen meaning is to agree. क्योंकि ये जो सॉरी Agree. Amen or Amin meaning is to agree. और आप सब जानते हैं कि आमीन का मतलब है
कि हम सब एग्री करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज Because द लॉर्ड। if you make sign of the cross, that you are that sign that you are still in Catholic. अगर आप साइन लगाते हैं, जब जैसे हम ऐसे करते हैं, तो खुदावंद का पाकलाम हमें बताता है कि सलीब जो है खाली हो गई है। सलीब अभी यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, इस सलीब को लेकर हमने आगे बढ़ना है। Amen. हालेलुया। It is not bad to make signs, but if you want to obey the word of God, you should follow what the word of God ये says. बुरी बात नहीं है, अगर आप साइन करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन पाकलाम में मेरे भाइयों ये नहीं लिखा है, मैं ये आपको बताना चाहता था। And the more you read the Bible and the more you come to Jesus, you जब will आप know ज्यादा से ज्यादा His बाइबल को पढ़ते हैं, instruction. जब हम देखते हैं, मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है। Amen. आमीन। So, letter B, we must pray continually. और Next जब slide. हम देखते हैं, लेटर बी को देखते हैं, अनुमान नंबर दूसरा देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लगातार बगैर रुके हमें दुआएं करनी चाहिए। Amen. आमीन। Let us open in Romans chapter 12, verse 12. Okay, आइए open your हम खुदावंद के Bible. पाकलाम को देखें, रोमियो की किताब उसका 12 बाब उसकी 12 आयत को। रोमन्स Chapter 12, verse 12. आइए 12 को देखिए। रोमन्स 12 Bara-bara. यस, Shuhada bara-bara. 12 यस Okay, 12, 12. यस। Okay, read it. Who found it? Okay, stand please, Natasha. उम्मीद में खुशी, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो। Hallelujah. Pray continually. Always pray. दुआ कीजिए लगातार, हमेशा दुआ कीजिए। Amen. We are not just like these Muslims that morning. There is a specific time for them to pray, right? हमें बस मुस्लिम की तरह ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक ही टाइम रखा हुआ है और उसी टाइम के बगैर आप दुआ नहीं कर सकते हैं। Amen. हमें हर वक्त दुआ करनी Amen. चाहिए, हर वक्त दुआ करनी चाहिए। आमीन। Praise the Lord. So we must pray continually in faith, with forgiving spirit, with perseverance. Just follow this one. With perseverance, just copy it, okay? Or ये take photo. इसकी आप पिक्चर ले लें। जब आप अपने घर में जाएंगे, आपको पता चलेगा हम कैसे दुआ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पाक कलाम का मुतालिया कीजिए ताकि आपको और मुझे, हम सबको पता चले और हम आगे बढ़ते रहें और खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल दें। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Move forward and they will take picture. Okay, then in this one you will open in your house these Bible verses. Then you will आप अपने घरों में study it. जाकर ये जो वर्सेस लिखी हुई हैं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, मुतालिया कर सकते हैं। किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका टीचर और उस्ताद कौन सा है? खुदावंद का पाक रूह है। हालेलुया। Hallelujah. Now, as we move on, आइए हम अभी आगे बढ़ेंगे there is suggested procedures on how to pray. और वहां पर लिखा हुआ है कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते Okay, हैं। the first one, number 1, how to pray. नंबर 1 हम देखते Next हैं। slide. Ayan. There. Read it. 1, 2, 3. आइए हम सभी पढ़ेंगे मिलकर। इधर सामने देखिए। 1, 2, 3। नमाज का तरीका कार बारे में तजवीज करदा तरीका कार। 1, मेयारी नमाज के लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर करें। एक तरतीब दिमाग जाती अफरा तफरी का बायस बनता है। एक बेतरतीबी रूह को इसे मुआफ करने और हदायत देने के लिए दुआ की जरूरत होती है। नमाज को दिन का पहला हुक्म बनाए। आमीन। Hallelujah. So, what is that? Every morning when you wake up in the morning, जब you हम हर must सुबह pray. उठते हैं तो हमें जरूरत है कि सच्चाई से दुआ करें। Before you get out from your bed, you must pray. आप खुदावंद के जब खुदावंद आपको सुबह जगाता है तो जरूरत इस बात की है, पाक दिली से, साफ दिली से खुदावंद से दुआ करें। Okay? आमीन। Mafi bas akal. Gabal akal. पहले खाना नहीं खाना है, पहले दुआ करनी है। हालेलुया। Inta bas malam dua gabal akal. O inta alatul akal. Mafi dua. नहीं, खाने से पहले जितने भी भाई दुआ नहीं करते हैं वो खाने से पहले दुआ करें, सुबह उठने के बाद दुआ करें, ताकि हमारा सारा दिन खुदावंद यीशु मसीह में पाक और साफ गुजरे। आमीन।
Mino akil alatul hina mafi doa. कौन अलातुल कौन है अक्ल। जो खाने के बगैर दुआ के खाना खाता है? Kana alatul. नहीं, बगैर Akil दुआ के alatul. when they are going to side Uh, they don't pray and okay, very Yes. good. Praise God. So every time you will eat your food, you have to pray. जब भी Okay. आप किसी भी जगह पर मौजूद होते हैं दुआ करके खाना खाइए। उसका फायदा ये होता है कि आप और मैं अगर उस खाने में कोई जरासीम हो वो यीशु मसीह के नाम के वसीला से कैंसिल हो जाता है। Amen. आमीन। Praise God. Number 2, नंबर 2, look for that secret place. और Next slide. देखें आप अपनी जो सीक्रेट प्लेस आपने मज़बा ठहराया हुआ है या रूम जो आपने मुकर्रर किया हुआ है वहां पर जाके दुआ Next slide, कीजिए। kuya. आइए Yeah. Number 2, नंबर 2 look for that secret place. Okay, लिखा हुआ everybody है read. 1 2 3 खुफिया जगह को तलाश करें, अपने घर में इस मखसूस जगह का पता लगाएं जहां खुदा के ज़ाहरी मौजूदगी आपके लिए हकीकी है। आमीन। Amen. हालेलुया। Look in your place. आप अपने घर में देखें कौन सी जगह मैं खुदा के लिए मुकर्रर कर सकता In हूं। your house, in your आप room. अपने घर में, आप अपने रूम में Fi makan, roh salinta. आप Dua. देखें कौन सा कोना आपको पसंद है वहां पर दुआ कीजिए। Beside your bed or wherever in your house, in your room. आप अपनी बेड की साइड पर दुआ कर सकते हैं। Make a place for you to pray. आप एक जगह चाहे छोटी सी हो चाहे एक Between- बंदे की हो मुकर्रर करें। Between God and you. वो जगह जो है आपके लिए और खुदा के लिए होनी चाहिए। You know Jesus, when he prayed, he go to his Gethsemane place. जब आप देखते हैं यीशु मसीह को पाकलाम में हम जब देखते हैं और पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो एक अलहदा जगह पर चले जाते थे जो मुकर्रर की होती थी उन्होंने और वो दुआ करते थे। When his disciples are sleeping, और जब आप देखते हैं कि वो पहाड़ी पर गए और उनके शागिर्द सो गए Jesus go to Gethsemane place and pray to the Father. और खुदाम यीशु मसीह गतसमनी में गए और वहां पर दुआ की Now he prayed between the Father and Jesus. और वो दुआ करने लगे और उनकी और फादर के यानी बाप के दरमियान दुआ थी वो। The same thing as Christians, you have to find a place where you meet इसी तरह God. हमें मसीही भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ बेटों बेटियों को करना चाहिए कि एक जगह ढूंढनी चाहिए, मुकर्रर करनी चाहिए अपने रूम में और वहां पर चाहे एक बंदे की जगह हो दुआ करनी चाहिए। Amen. आमीन। If you pray, mafi jawal, mafi TV. और जब आप दुआ करते हैं तो टेलीविजन नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, बल्कि मोबाइल थोड़ा साइड पर रख Off दीजिए। that mobile. It is only between you and God to pray. अगर हो सके तो आप अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए उतनी देर जितनी देर आपने दुआ करनी है। Amen. आमीन। Okay, when Jesus go back to disciples, और फिर दोबारा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास आते he थे saw his disciples sleeping. और उन्होंने देखा उनके शागिर्द सोए हुए हैं। Amen. Amen. Then Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, can you not give me only 1 hour to pray? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए 1 घंटा भी जाग नहीं सकते? How about you? How many minutes you pray in the morning? आप कौन कौन कितने कितने टाइम दुआ करते हैं? Kitna time? नहीं? 2 minutes? We are half and one No, and a no, half. your personal. Oh, 1 and praise half. the Lord. Yes. How about the personal prayer? You only. How many minutes? हम तो रात को जो पर्सनली है वो 1.5 घंटा प्रेयर करते हैं क्योंकि आप सब भाइयों के, आपकी फैमिलियों के, आपके ख़ानदानों के, आपके बिजनेसेस के, आपकी गाड़ियों के और आपके नेबर्स के और आपके जो मोहल्ले और जो शहर हैं पाकिस्तान में और इंडिया में हमने उनके लिए भी दुआ करनी होती है। इसलिए हम तो हर रोज़ जो पर्सनल है वो 1.5 घंटा प्रेयर करते हैं। Amen. हालेलुया। Maybe if you wake up, you just say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Then go to work. Mafi बस ऐसे नहीं करना है कि सुबह उठना है और यीशु को कहना है कि खुदा यतीम तेरा शुक्र तेरी तारीफ Alatul coffee, akil, sura, roh, shukol. और आपने जल्दी जल्दी खाना खाना है और काम पर चले जाना है। Amen. आमीन। Do you do that? आप एग्री है इस बात पर? Praise the Lord. आप एग्री है इस बात पर? नहीं. नहीं। जल्दी करो इनसे।
समझिए Mafi dua, mafi kalam, shukriya. Okay. they are nothing agree Huh? with the topic like that. Yeah. Change that attitude, okay? आप अपने रवैये Change को, that attitude. आप अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड रखिए जो खुदावंद को पसंद है। Make हालेलुया। prayer, okay? Make prayer the first priority every morning. हर सुबह दुआ को पहली अहमियत दीजिए। Amen? आमीन। So that God will protect you from evil. इसीलिए फिर सारा दिन खुदावंद जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा परेशानियों से, मुसीबतों से और इब्लीस के सारे फंदों से। So that God will bless the works of your hands. और खुदावंद फिर आपके सारे काम को ब्लेस करेगा और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करेगा। Amen. Number आमीन। 3. नंबर 3 हम देखेंगे। Okay, read. 1 2, 3. 2 3 एक मखसूस वक्त की हद मुतय्यन ना करें, आप अपने आप को शुरू से ही शिकस्त देंगे। दुआ आपके आसमानी बाप के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते के दरवाजे की बजाय एक बारी बोझ बन जाएगी। Amen. Don't limit your prayer. कोई भी आप टाइम की लिमिट ना रखें दुआ के लिए। Okay? Amen. Any time or 1 hour, no problem. 2 hours, no problem. If you can pray it 1 जब भी hour, आप 2 दुआ hours. करते हैं, It's okay. जब पहले आप 20 मिनट से शुरू कीजिए, 30 मिनट से शुरू कीजिए, फिर आप 1 आवर पर जाएंगे, फिर 2 आवर पर जाएंगे और खुदावंद मेरा और आपका ईमान यानी फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। फिर आपको और मुझे पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी दुआ खुदावंद के सामने कर ली है। Amen. हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह भी दुआ करते थे। 15 minutes is a quality time for prayer. ये 15 मिनट जो है ये क्वालिटी टाइम है Okay? दुआ के लिए। 15 minutes quality time, no cell phones or no mobiles, no television. It is जब 15 आप minutes 15 मिनट दुआ के quality. लिए रखते हैं, आप अपने मोबाइल को ऑफ करके साइड पर रख दीजिए। Amen. So number आमीन। 4. नंबर 4 हम Number देखेंगे। 4. Begin with thanksgiving and praise. शुक्रगुजारी के साथ हम शुरू करें। हालेलुया। Amen. 1 2 3 शुक्रिया और तारीफ के साथ शुरू करें। शुक्र अदा करना और तारीफ करना आपकी रूह का खुदा को पेश करना है। रूह कुदस आपकी रूह से मिलता है जब आप अपने आप को इबादत के लिए देते हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. So before you pray, you worship. You thank God. दुआ करने से पहले आप चाहे 2 लफ्ज ही क्यों ना गाएं, खुदावंद के सामने शुक्रगुजारी करें। जैसे हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, ज़बूर जब 136 हम बोलते हैं और हम ऐसा कहते हैं, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, Hallelujah. जिसने है आसमान बनाए, रहमत होती है सदा। हालेलुया। Next is repent. Number 5, repent. नंबर 5 हम देखेंगे। Repent. 1, 2, 3. 1 2 3 हम सभी पढ़ेंगे। याद रखें कि आपका मकसद आपके दिल को साफ करना है। खुदा से कुछ छुपाना तभी मायना खेज होगा जब ये आपको मुकम्मल तौर पर और साबित कदमी के साथ गुनाह से मुंह मोड़ने की तरफ ले जाए। आमीन। Amen. जब So, हम खुदावंद के सामने अपने दिल को साफ रखते हैं तो गुनाह से हम मुंह मोड़ लेते हैं। आमीन। Amen. في نفر ممكن يتجنجل سوا نفر. और काफी सारे जिनका लोग लसा आपके वसा साथ नफर। लड़ाई करेंगे और आपके हो सकता है वो जेलसी फील करें, हो सकता है आपको गिराना चाहें आपके काम में। إذا في زعلان زيادة بعدين أنت مشكل يبقى جنجال لازم قبل أنت تروح دعاء لازم ask forgiveness. और जब हम दुआ करते हैं, अगर हमने लड़ाई कर ली है एक दिन, तो सूरज डूबने से पहले खुदावंद का पाक कलाम हमें कहता है कि दुआ करनी चाहिए उसके लिए, और अगर उसने भी गलती की है तो उसे माफ कर देना चाहिए। Amen. आमीन। Because God knows your heart. क्योंकि खुदावंद मेरे और आपके दिल को जानता है। God will not forgive those who do not know how to forgive. खुदावंद उसको माफ नहीं करता है जो वो दूसरों को माफ नहीं करता है। Amen. आमीन। So that God will be happy or pleased. खुदावंद इस बात पर खुश होता है। Amen. So Amen. number 6. Number 6. नंबर 6 हम देखेंगे। आइए मिलकर पढ़ें। 1 2 3 अपने दिल को खुदा के दिल के साथ बातचीत करने दें। Okay. So number 6. ऑपरेटो अल्फाज हैं
हथियार डालना, तर्क करना, तुम अपने बाप के सामने बच्चे हो, इसे आपके दिल के कामों को सुनने दें और फिर आपके दिल को इसकी सुनने दें। आमीन। Amen. So that's it. You must ask forgiveness, surrender your life to God, then God will हमें answer जरूरत इस your बात की prayer. है कि अपना सब कुछ खुदावंद के सामने सरेंडर कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Now we will jump to the topic, pattern for prayer. जब अभी हम क्या करेंगे कि जंप लगाकर यानी शॉर्टकट करके आगे बढ़ जाएंगे और हम देखेंगे हम कैसे दुआ कर सकते हैं और कौन कौन सी जरूरियात है हमें दुआ करने के लिए। Amen. आमीन। So every time you will pray, you have to pray for your nation, for your family, for job, for the church, everything you will pray. जब हम दुआ करें या आप दुआ करें तो हमें ज़रूरत है पहले अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी सारी इस ज़मीन के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए बनाई हुई है और हमारे लिए पैदा की हुई है। आमीन। So we will teach you what's the pattern for prayer. There is synonym ACTS, acts. हम देख रहे हैं Sa, ano mo pa? Okay, ACTS. Meron po yan. No, next. Nilaktawan ko na kasi para ano mabilis. Yan. Okay, this is the Aye. pattern for prayer. आप पिक्चर ले लें इसकी। Okay, take photo. Where the pattern for prayer. Okay, pattern for prayer is letter A is adoration. Okay, read it. 1, 2, 3. Letter A. नंबर 1 हमें बताता है हर जगह दुआ कर सकते हैं। आमीन। Okay, 1, 2, 3. Sabay-sabay. All हर जगह together. दुआ कर सकते हैं। 1, 2, 3. Come on. हर जगह दुआ कर सकते हैं। Amen. Adoration, praise and worship of the soul of the Lord. What is adoration? What is adoration? Adoration? Yeah, adoration means, Father God, you are most beautiful and wonderful God. कोई भी आप खुदावन की तारीफ कर सकते हैं कि खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, जैसे तू बड़े बड़े काम करता है, हमारे लिए वो काम करता है जो हमारी समझ से भी बाहर है, ऐसे आप खुदावन से दुआ कर सकते हैं। Also, you are the God who created the heavens and the earth and all these things. और तू ही वो खुदा है जिसने ये सारी दुनिया को बनाया और ये जो कुछ भी इसमें है ये सब तूने ही बनाया है। Also, you are most powerful, the और name तू above कुदरत all वाला names. खुदा है और तेरा नाम सबसे ऊपर है, तेरे नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। That is adoration. ये है खुदावंद की तारीफ करना और इस बात पर दावा करना कि खुदावंद तू ही सब कुछ करने वाला खुदा है। Amen. आमीन। That is the start of your prayer. You ये must आपकी और मेरी give दुआ का honor. स्टार्ट हो सकता है ताकि हम खुदावंद को अपनी सारी दुआओं में हर चीज का मालिक बनाएं। Amen. आमीन। Letter C. जब हम देखते हैं लेटर सी, Okay, read it. 1, 2, 3. कलीसिया में दुआ करनी All चाहिए। together. कलीसिया में दुआ करनी चाहिए। Amen. आमीन। You must ask forgiveness. Confession. और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें अगर हमसे गलती आपसे या हमसे हो जाए। Okay. Let us open the Bible in Psalms 32 verse 5. आइए हम खुदावंद के पाक If you कलाम have को that Bible, देखें। read it. Okay, at the back. Psalms 26 Psalms 32 verse 5. ज़बूर की किताब उसका 32 उसका 5 पढ़ें। You find it? जिसने भी ढूंढ लिया हो वो पढ़ दें। हाँ बाचो बता दो। Stand up, Narindar. Narindar. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। आमीन। Amen. हालेलुया। So you will need to ask forgiveness. खुदावंद से दुआ कीजिए कि Next मैं slide. गुनाहगार हूँ और मुझे माफ कर दे। Letter T.
जब लेटर टी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है Yung T dyan, yung T. Yung Thanksgiving. Meron o wala? Mafi? Mafi, muskila. Next, letter T. आप इसको फोटो लीजिए, A, the आप first पढ़ one, सकते हैं। A is adoration. C is confession. T, do not follow this one, not this one. Letter T is thanksgiving. Okay, लेटर write टी it. जो है वो थैंक्स गिविंग है, Thanksgiving. शुक्रगुजारी करना है। Okay? And of course, if you pray after you ask forgiveness, you must thank the Lord for all the blessing. जब आप खुदाम से दुआ करें, पहले तो अपने गुनाह का इकरार करें, उससे माफी चाहें और बाद में शुक्रगुजारी करें जो भी खुदावंद ने आपको दिया हुआ है। And last is letter S. और लास्ट में हम देखेंगे लेटर एस को। Okay. S meaning is supplication. एस मीनिंग्स है सुप्लिकेशन, यानी जो कुछ भी आपके पास है वो सब खुदावंद को सबमिट कर देना। Amen. Amen. Supplication means you are asking your needs. सुप्लिकेशन मीन मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप कोई भी अपनी रिक्वेस्ट खुदावंद को डालते हैं, आप अपनी कोई भी दरख्वास्त खुदावंद को डालते हैं, वो है सुप्लिकेशन। Amen. आमीन। So, what is the pattern for prayer? Letter A, लेटर ए adoration. हर Letter जगह दुआ कर सकते हैं। C, लेटर सी कलीसिया में दुआ confession. करनी चाहिए। Letter T, thanksgiving. थैंक्स गिविंग शुक्रगुजारी करनी चाहिए। And letter S, सबमिशन यानी Supplication. अपनी सारी जो रिक्वेस्टें हैं वो खुदावंद को आप दे सकते हैं। okay. Amen. Amen. You Amen. remember that one. आप ये सब याद रखेंगे। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Next Hallelujah. slide. Where to pray. Okay, where to pray. Number 2 yan. Roman हम numeral देख number सकते 2. हैं, Roman ये आप numeral फोटो number ले 2. लीजिए, कहाँ नमाज पढ़नी है और कब पढ़नी है। Where to pray. ABC po yan. Parang wala dyan ah. A, B, C, D, E. When to pray po yan. Before that, where to pray. A, B, C. Okay. Mamaya na yan. Dun ka na lang. Mamaya na yan. Where to pray. Tell them where to pray. कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। Christians can pray everywhere. मसीही लोग हर जगह दुआ कर सकते हैं। You can pray in your job. आप अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पर, नौकरी पर दुआ कर सकते हैं। You can pray in the church. आप चर्च में दुआ कर सकते हैं। You can pray in your room. आप अपने रूम में दुआ कर सकते हैं। You can pray everywhere. आप हर जगह दुआ कर सकते हैं। Amen. And when to pray? जब आप दुआ करते हैं, Yan na po yun, yung A, B, C, D, E. When to pray? This one, see? When to pray? In the आइए, morning. Okay, just सुबह take में, photo. दोपहर और शाम को, दिन और रात, हमेशा, रोजाना। आमीन। आमीन। इसकी फोटो ले लीजिए ताकि आपको आयतें भी याद रहें, ताकि आप दूसरों को आंसर कर सकें इन बातों का। Okay. हालेलुया। Let us read all together. 1, 2, 3. आइए हम Tulo, सभी sawa-sawa. मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3. भाइयों, Letter A. आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। आमिर भाई, हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। Okay. सुबह में, Read. दोपहर और शाम को, दिन और रात, हमेशा, रोजाना। Amen. Posture in prayer. Okay, next slide. Okay, posture in prayers. Position. Letter A. आइए हम देखेंगे, लेटर ए से एफ तक सारे मिलकर पढ़ेंगे। झुके हुए सर के साथ, चेहरे पर गिरते हुए, घुटने टेकते हुए, खड़े होते हुए, बैठे हुए, हाथ उठाने के साथ हम Next. सारे तरीके से दुआ कर सकते हैं। Next slide. G. और अभी जी से हम के तक देखेंगे। ऊपर देखते हुए, हाथों से फैलाने के साथ, रोने के साथ, बात करने के साथ, अजियत के साथ, आमीन, Amen. कराहने के साथ। Praise God. So, Praise the Lord। different position. You can say, pakibalik nga sa A. हर तरह से आप दुआ कर With सकते bow हैं। heads like this. आप Position in prayer. You can bow खड़े like होकर भी this. दुआ कर सकते हैं। Okay? While falling on the face. What is falling on the face? आप अपना चेहरा उठाकर गिराकर। और नीचे गिराकर भी दुआ कर सकते हैं। Kneeling.
और आप अपने घुटनों पर होकर भी दुआ कर सकते हैं, standing, और खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं, sitting. और बैठकर भी दुआ कर सकते हैं। بس مشكلة أنت ما في إجلس كده بعدين أنت سوي الدعاء بعد النوم. और बस ऐसे नहीं कि हाँ? आप बैठे हुए दुआ करें और आपको नींद आ जाए और आप दुआ करते करते सो जाएं। أنت في دعاء بعدين شوي. आप दुआ करें और बाद में आपको नींद आए no और आप malato. उधर ही गिर पड़े। ऐसे दुआ नहीं करनी है। Lifting our hands like this. आप अपने हाथों को उठाकर के दुआ कर सकते हैं। Amen. You know why we are telling you to lift your hands while we are worshiping? आपको पता है हम आपको क्यों कहते हैं कि जब आप दुआ करें तो अपने हाथों को उठा लें? This is a posture in prayer. क्योंकि ये एक तरीका है खुदाम से दुआ करने So का। when we say, please lift up your hands, जब हम कहते हैं कि प्लीज अपने हाथों को आप उठाइए, that means you are praying, surrendering yourself to God. ये इसका मतलब है कि आप जब अपने हाथों को उठाते हैं तो खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। आमीन। Spreading your hands like this. और जब आप ऐसे दुआ करते हैं Amen. While looking up. और ऊपर देखते हैं, Amen. Weeping, crying, talking, agonizing with groaning. और आप खुदावंद के सामने कराहते हैं, रोते हैं और उससे बातचीत करते हैं। Amen. As we Amen. go on, we will finish number 5, the last. और लास्ट नंबर 5 अभी हम देखेंगे और Last, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, फिनिश Last करेंगे। slide. Next. Okay. Hindrances to prayer. दुआ चर्च के रीढ़ की हड्डी है। ये हर Okay, मसीह read की 1 to 3 all together. Kulo sawa. 1, 2 की हड्डी है। ये हर मसीह की ताकत का मंबा है। No. ये तवानाई देता है। A, B, C, D, E. ये तब्दील करता है। Wait. Oh yeah. Okay. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. नमाज में रुकावटें, Letter बदकारी, A. गुनाह, एक नाकाबिल माफी रूह, गलत मुकासद, रहम की गफलत। आमीन। Amen. Praise God. So when you prayer, this is the hindrances. Hindrances in your prayer. Why God don't answer your prayer? ये छुपे हुए राज हैं कि खुदावंद मेरी और आपकी दुआ को क्यों नहीं सुनता है। Do you believe in the power of prayer? आप इस बात पर यकीन करते हैं कि दुआ की क्या ताकत है? Only one here? बस वाहिद नफर ही ना? भाई आपके साथ क्या सवाल हुआ? Okay, do Just you? 1 minute. Okay. भाई अदनान भाई आपके साथ क्या सवाल हुआ? नहीं। Okay. Do you believe in the power of prayer? आप दुआ की ताकत पर यकीन रखते हैं? Amen. Amen. So Hallelujah. you must forgive others before God will answer हमें your एक prayer. दूसरे को माफ करना चाहिए, फिर खुदावंद हमारी दुआ का जवाब देगा। आमीन। Amen. माफी बस कुलो जिब हादा. बात से खुदा से यही नहीं कहना है कि माफी मुझे कुल्लू ये मर्रा। दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे। एक Amen. दूसरे को माफ भी करना है हमने। Last forgive. एक दूसरे को माफ करें। Hallelujah. हालेलुया। Okay, last prayer is the backbone. Okay, no problem. आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। Crystal. दुआ चर्च की कहीं ना रीढ़ की पकायो। हड्डी है। ये हर मसीह की ताकत का मंबा है। ये तवानाई देता है। ये तब्दील करता है। आमीन। Amen. आइए हम सभी अपने कदमों पर खड़े हो Praise जाएंगे। the Lord. Come on, give the Hallelujah. Lord the mighty hand of praise. आइए हम खुदावंद के नाम पे Hallelujah. इज़्ज़त और जलाल दें अपने हाथों Praise से। God. Praise God. So I am requesting, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, please, brothers and sisters, pray our church. दुआ करें सबके लिए और चर्च के लिए दुआ करें Pray your families और फैमिली के लिए दुआ करें that God will touch them ताकि खुदावंद मुझे और आपको छुए और आगे बढ़ाए and they will receive also the gift of salvation. और हम खुदावंद में नजात का गिफ्ट जो है, तोहफा जो है वो रिसीव कर सकें। Amen. आमीन। Do you want your family to be saved? आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आप बचे रहें? Do you want your family to receive the eternal life? आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली हमेशा की जिंदगी पाए? Amen. आमीन। Now you will pray for them. अभी आप दुआ करें उनके लिए। Every night, every day, हर दिन हर रात pray that they will receive the good news or the gift of salvation. दुआ जो है आपके लिए और मेरे लिए निजात का बायस बनती है। Amen. आमीन।
Hallelujah, Jesus. Come on, lift your hands to God. आइए हम अपने हाथों को उठाएं खुदा की तरफ. हालेलुया, Awitin po natin yung I love हालेलुया. you. जलाली खुदा तेरा शुक्र. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again, everybody say, I love you, Lord. I love you, Lord. Come on, just continue to lift your hands to God. Say it. Brother Asar, lift their hands आइए हम अपने हाथों को उठाएं और खुदाम से दुआ and sing करें. this worship. और खुदाम से वो दुआ करें जो आप चाहते हैं. जैसे खुदाम हमसे चाहता है कि हम दुआ करें. You, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Hallelujah. Come on, if you know this song, just lift your hands and sing with all your heart. Come on, brothers and sisters. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Just lift your hands. Hallelujah. Once again. Hallelujah. Say it, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Everyone, say thank you, Jesus. Come on. Lift your voice. Tell them, brother or sister, to lift their voice and sing this song. सभी मिलकर गाएंगे. Thank you, Jesus. Thank the Lord for everything that He has done into your life. Come on, brothers and sisters. Thank the Lord for everything that He has done in your life. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the last time, sing it. Hallelujah. Hallelujah.
come on. The Spirit of God is moving in your life. Hallelujah. Hallelujah. Brother Asher, tell them to pray आइए हम with their दुआ करेंगे families. सभी खुदा उनके सामने अपनी Habang अपनी patuloy दुआएं na रखें। tumutugtog ang mga piano. आप अपने बच्चों के लिए, अपनी Come फैमिली on, के pray लिए, your आप families. अपने खानदान के लिए, Pray आप your अपने friends. चर्च के लिए, आप अपने Pray लोगों के लिए, आप अपनी कलीसिया your के loved लिए, ones. आप इस चर्च के लिए, आप on. मुल्क सऊदी अरबिया के लिए दुआ Open up करें। your lips and और pray. खुदावंद आपको और आपकी फैमिलियों को बड़ी बरकत दे। Pray, pray, हम pray. दुआ करें जिंदा यीशु मसीह के Ora नाम ba 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 shi kara ba shan. हालेलुया जलाली खुदा तेरी Ora ba shi kara ba ba shi kara ba shan. यहोवा पाक खुदा हमारा Hallelujah. जिंदा आसमानी बाप है Lift your hands. हमारे साथ रहता है Lift और your हमें hands आगे and बढ़ने का pray. बारी फजल और बारी तौफीक अता करता है इन तमाम तरबातों Ora ba कामों ba के ba लिए shi kara ba तेरी shan. शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करते हैं वो हमारा जिंदा आसमानी बाप है और वो हमें वो सब कुछ देने वाला खुदा है जिस बात की हमें जिस काम Yes, के लिए come on, pray और your जिस चीज की families. हमें जरूरत है Continue जलाली खुदा को praying. अपनी और हमारी जिंदगियों में है जलाली खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक बड़े Oh, बड़े Jesus. काम करता है जलाली Bless खुदा। these people. और हमें कभी भी अकेला नहीं Bless छोड़ता your है। people. जिंदा यीशु मसीह के नाम पे Bless their families that they may receive the good news of salvation. Lord, I pray for protection of their families. Lord, I pray for the protection in their job and their good health, Lord. Lord, I pray that every works of their hands continue to increase them in the name of Jesus. Continue to grow them in the saving knowledge of your Son Jesus. Continue to speak unto them the conviction in the name of Jesus. Continue to speak to them, Lord. Ora ba shande. Come on, lift your hands again. आइए हम अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं। Hallelujah. हालेलुया One more time. Come on, church. Sing hallelujah to the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be honored. His name is Jesus, the begotten Son of God. And if you have faith in Him, you will be saved. And your entire family. Oh, Jesus. Hallelujah to your name. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your mercy and your grace, Father. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for this very, very hour. जलाली खुदा तेरी शुक्रगुजारी तेरी Thank you for that आज के दिन के presence, लिए, oh God. आज की हजूरी के लिए जो आपकी हजूरी इस जगह पर Thank मौजूद you, है। and we हम bless your आपकी name. शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करते In हैं Jesus' name. जिंदा यीशु नासरी के नाम में Amen. Praise the आमीन हालेलुया आइए हम खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल देने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें प्रेज द लॉर्ड आप सब खुश हैं हालेलुया आइए मेरे साथ निकालिए मलाकी 3 बाप उसकी 10 आयत और 11 आयत
और ये हम हर वक्त हर घड़ी लोगों को भी बताएंगे और अपने आप को ईमान में भी आगे बढ़ाने के लिए बताएंगे कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कैसे कैसे वादे किए हुए हैं। खुदावंद पूरे पाक कलाम में ये कहता है कि कोई किसी को यानी कोई खुदा को आजमा नहीं सकता है, लेकिन इस बात में खुदावंद कहता है कि तुम मुझे आजमा के देखो। अदनान भाई, क्या खुदावंद कहता है? आमीन, हालेलुया। मलाकी किताब उसका 3 बाब उसकी 10 आयत निकालिए। मैं जल्दी से पढ़ूंगा और खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए आगे बढ़ेंगे। और खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 आयत से जब हम देखते हैं हमें पता चलता है, खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, पूरी दायक की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। और जब हम देखते हैं आयत नंबर 11 में वर्स नंबर 11 हमें पता चलता है, लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ऐसे ऐसे वादे हमसे करता है। आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है यूनिवर्स में कितनी नज़र आती है। हमारी अर्थ यूनिवर्स में आपको पता है ये नुक्ता भी बड़ा है, ये जो एक डॉट है ना ये भी बड़ा है। हमारी पूरी अर्थ जो है यूनिवर्स में जब या गैलेक्सी में देखी जाए तो ये डॉट भी बड़ा है। और इस डॉट में हम छोटे से एक घर में एक जगह पर बैठकर जब दुआ करते हैं खुदावंद से, जो आसमानों के आसमान पर नहीं समा सकता है, वो हमारी दुआ को सुनकर किधर आ जाता है? हमारे दरमियान आ जाता है। आप जानिए कि खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है। खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमारी छोटी सी दुनिया में, हमारी छोटी सी गली में, हमारे छोटे से घर में, हमारे छोटे से चर्च में आकर हमारे दरमियान बैठ जाता है। ये उसका प्यार है। अगर हम देखें ना, हम खुदावंद के सामने कीड़ी के बराबर भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है कि तुम मेरे हुजूर अपने हदिये लाओ और मुझे आजमा के देखो। क्या कोई इंसान खुदा को दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद का ही दिया हुआ है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के इस पाक कलाम के वसीला से आप और आपकी फैमिलियां बड़ी बरकत पाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टाइथ एंड ऑफरिंग्स यानी दायकी और आपके हदिये जीसस इज लॉर्ड चर्च से हाथ को बिल्ड करने के लिए, जीसस इज लॉर्ड पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए, जीसस इज लॉर्ड इंडिया को बिल्ड करने के लिए, जीसस इज लॉर्ड और ज़्यादा ममालिक को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये कोई किसी एक शख्स के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए और खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन, हालेलुया। सो अपने हदिये जात खुदावंद की तरफ लेके आए और उसे मुबारक कहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस भाई, आगे आ जाए। अरसलान भाई, जहांगीर भाई, आइजक भाई, उमायर भाई, दानिश, आकाश,
हालेलुया। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हाँ, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ओ मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ओ मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा। अपने परों में छुपा लूंगा, अपने परों में बना दूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हाँ, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ओ मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माजी बना ले तू। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माजी बना ले तू। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हाँ, मैं यहोवा यरी
सभी मिलकर ज़बूर 55 गाएंगे जो सभी को आता है। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रुहाई। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई, हुण ते मैं यहोवा अगे। शाम सुबह दोपहरां नूं मैं फरियादां गुजारा, शाम सुबह दोपहरां नूं मैं फरियादां गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाल सब पुकारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाल सब पुकारा, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, हुण ते मैं यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਾਰ ਸੀ ਬੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਾਰ ਸੀ ਬੋਗਾ, ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਾਰ ਸੀ ਬੋਗਾ, ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੁੜ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੜ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਵੇਖੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਵੇਖੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਪਣੇ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਗੇ ਕਾਲ ਕਰਾਰ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ, ਕਾਲ ਕਰਾਰ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ, ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੂਲਾ, ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੂਲਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੂਲਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਪਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਪਰ
पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां गाता पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां गाता हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई हुण ते मैं यहोवा अगे अपना पहाड़िया ते सुट आपे ओ संभाले अपना पहाड़िया ते सुट आपे ओ संभाले सच नू हमेशा थी कर सच नू हमेशा थी कर कदी न तिलकन देवे सच नू हमेशा थी कर कदी न तिलकन देवे हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई हुण ते मैं यहोवा अगे दगाबाज ते खूनी कदी अति उमर ना पावे दगाबाज ते खूनी कदी अति उमर ना पावे पर है मेरी आस हमेशा पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे ऊते पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे ऊते हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई हुण ते मैं यहोवा अगे आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हम अपने नए भाइयों को वेलकम करेंगे। वो तीनों भाई किधर गए हैं मैं देखना चाहूँगा। भाई सलमान, भाई शयान, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ आवर ब्रदर फ्रॉम पाकिस्तान कोयटा शयान पॉल। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आगे आइए। आप बताइए, आपके बारे में बताइए और सभी को उधर मुंह करके आप बताइए, इंट्रोड्यूस करवाइए अपने बारे में। नाम मेरा शानियल नाम है। कोयटा से मैं इधर टायर का काम कर। आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। ये ब्रदर इनकी एज है 26। ये खुदावंद के फजल से फ्रॉम दमाम एंड दे वर्क फॉर टायर्स। थैंक्स गॉड हालेलुया। इसी तरह हम दावत देंगे अपने भाई रोबन गोरी को। हालेलुया। खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आप आगे आए। इस्लाम जी सारे अपना नाम दस। नाम है मेरा रोबन और टैरो के काम करता हूँ मैं भी सियालकोट पाकिस्तान। सियालकोट पाकिस्तान नहीं, किधर रहते हैं? इधर किधर रहते हैं? इधर दमाम दल्ला सनैया दमाम में रहते हैं भाई। इसी तरह हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दी है। भाई आपको और आपकी फैमिली को खुदावंद बड़ी बरकत दे। और खुदावंद जीसस इज लॉर्ड चर्च के जरिया से, जीसस इज लॉर्ड चर्च वर्ल्ड वाइड के जरिया से, जीसस इज लॉर्ड चर्च कतीफ के जरिया से, जीसस इज लॉर्ड चर्च वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल के जरिया से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। इसी तरह हम दावत देंगे अपने प्यारे भाई भाई सलमान गोरी को कि वो आके आए और खुदावंद के नाम को हेलो, मसीह में सबको सलाम। मैं दमाम च रहना, टारा का काम करना। सियालकोट। हालेलुया।
हम आपको बताना चाहते हैं भाई कि हम आपको वेलकम करते हैं. वी आर affiliated to Jesus is Lord Church worldwide. Our spiritual director is Bishop Brother Eddie Villanueva. Hallelujah. और our country pastor is Pastor Robert Gafford. Hallelujah. पहले आप मिल भी चुके हैं उनके साथ. और our pastor of Jesus is Lord Church Katif Outreach, Pastor Harvey Yadel. Hallelujah. Praise the Lord. We are Bible based. No, nothing. कोई दूसरा नहीं है हमारा. बाइबल बेस पर ये चर्च है. आप बाइबल के मुताबिक इसे देखेंगे. बाइबल के मुताबिक ये जीसस इज लॉर्ड चर्च है. आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आप ऐसा ना करें वैसा ना करें. आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ना लेके आएँ. कोई दूसरा एंटर नहीं हो सकता है क्योंकि ये चर्च जो है बाइबल बेस है. और खुदावंद इस चर्च में आप तीनों भाइयों को बड़ी बरकत दे. हालेलुया. और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आज के पाकलाम के वसीला से आप सबको और आपकी फैमिलियों को बड़ी बरकत दे. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. हालेलुया. प्लीज क्लोजिंग प्रेयर. यस, क्लोजिंग प्रेयर. आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे. Let's all stand. Hallelujah. This is for the last song we will sing to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you still have energy? Okay, we'll lift up our hands to Jesus, okay? As we sing this song, okay? Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. अपने हाथों में तुम्हारा Hallelujah to your name, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory आए to हम God. अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम के नाम की ज़ोर चला दें. अपने सर को झुकाएं और हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे ताकि हम आगे बढ़े और खुदा उनके नाम की ज़ोर चला दें अपनी दुआओं के जरिया से. और जो भी हमारी रिक्वेस्ट है खुदा उनके सामने रखें ताकि खुदा हम सब के वसीला से आप सब की दुआओं के वसीला से हमारे काम सुधारे और हमारे वसीला से आपकी दुआओं को सुने. हालेलुया. और हम दुआ करेंगे जिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से. आमीन 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 आमीन. हालेलुया. Come on, continue to raise up your hands to God आइए हम अपने हाथों को खुदावन की तरफ and उठाएंगे receive the blessings of the और Lord this खुदावन की ब्लेसिंग को afternoon. देखेंगे जो हमारे In the ऊपर name वो of कर रहा है Jesus. यीशु मसीह के नाम. Father, we thank you for the आइए ऐसे हम victory तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करते हैं आज की जीत के लिए that you have given unto us जो this आज afternoon. हमको आपने दी है. Thank you for your words. हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके पाकलाम के लिए. Thank you for the visitation of your power, जलाली खुदा of your आपकी विजिट spirit. के लिए जगह पर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. Thank you for guiding us. ऐ जलाली खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तूने Thank हमें you for सिखाया protecting us. और हमें बताया. जलाली खुदा Thank you for the life of these जलाली people. खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ को तूने हमें बताया और आगे बढ़ाया. जलाली And I pray, and as I release the blessing, ऐ जलाली खुदा आज हम ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं जिंदा यीशु नासरी के raise up नाम. your hands and receive the blessing. आइए हम अपने हाथों को उठाएं और रिसीव करें उस ब्लेसिंग को. In the book of Deuteronomy, chapter 1, verse 11, और जब हम इस्तिशना की किताब चैप्टर नंबर प्लीज may the Lord, the God of your fathers,
increase you 1,000 times. खुदावंद आपको, आपका जो हमारे बाप दादा का खुदा है, आपको हजारों बरकत अता करे And bless you as He has promised. और खुदावंद आपको बरकत दे जैसा उसने वादा किया है। Receive the blessing upon blessing. आज रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स को May the favor of man और खुदावंद की फेवर को and रिसीव favor कीजिए from God और फेवर को रिसीव कीजिए खुदावंद की तरफ से be always upon you. और खुदावंद आपके और मेरे साथ है हमेशा। May your soul, spirit and body हमारी जान जो है, हमारा बदन जो है, हमारी रूह जो है वो खुदावंद की है be kept blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. और वो बेगुनाह है और बेदाग है, वो खुदावंद कुदूस है और वो हमारी तरह इस दुनिया में रहा। Bless the works of their hands. हालेलुया। जो जिन्होंने हाथ उठाए सब के लिए Bless their families. यीशु के नाम में इनकी फैमिलियों को छुइए और Bless bless their loved ones. और इनके प्यार करने वालों को छुइए और Bless bless their job. और इनकी जॉब को ब्लेस कीजिए। Bless everything in जिला them खुदा in इनके Jesus' सब name. कुछ को ब्लेस कीजिए जिंदा यीशु नासरी के नाम में। As we depart from this place, जिलाली खुदा, Lord, जब हम एक दूसरे से जुदा होते let हैं, your divine protection जिलाली continually खुदा आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन हमें be लगातार with them in जिलाली खुदा Jesus' name. संभाले रखे जिंदा यीशु नासरी के नाम में। Lord, use these people of yours जिलाली खुदा जिंदा यीशु नासरी के नाम में इन लोगों को इस्तेमाल कीजिए to share the good news of और salvation. जिलाली खुदा ये तेरी खुशखबरी लोगों को बताएं। Everything that they may heard, जिलाली खुदा जो भी इन्होंने और हमने सुना है, they will share it to their families. जिलाली खुदा ये अपनी फैमिलीज के साथ In the शेयर name करें। of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Receive the blessings, आप रिसीव करें the blessings को। overflowing blessings और आपकी ओवरफ्लोइंग The open heavens. रिसीव कीजिए जो आसमान से है in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Say it. Thank you, Lord. खुदा अजीम तेरी शुक्रगुजारी Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Father. थैंक यू फादर। Thank you, Holy थैंक यू Spirit. होली स्पिरिट। This is our prayer. दिस इज आवर प्रेयर। To you all the glory, आपके नाम के इज्जत और जलाल मिले। all the honor, ऑल द ऑनर, thanksgiving जो भी शुक्रगुजारियां हैं in the name of the Father नेम ऑफ द फादर and of the Son बाप और बेटे and of the Holy और Spirit. खुदा के नाम में And everybody will और say, हर एक कहे